जय श्री महाकाल. हाउ इज़ एवरीबडी? आई होप सब लोग बिल्कुल खुश हैं, खुश खुश लग भी रहे हैं. सो मेजर ट्रांजिट इज कमिंग. इट्स राहु एंड केतु. They are moving from their sign, and this is going to be one of the very strong transit happening. And what's the reason behind it? Is that Rahu is coming home. Rahu is entering in Aquarius in his own sign, right? Those who don't know, Aquarius is ruled by Rahu and he is returning home. But before discussing any of this, सब लोग अपने अपने मन में गणेश जी का ध्यान कीजिए, बिकॉज बिना गणेश जी के हम ये वेबिनार को स्टार्ट नहीं कर सकते. और उसके बाद अपने अपने गुरुओं का भी ध्यान कीजिए, जिनके माध्यम से आप तक ये नॉलेज पहुंच पा रही है. सो बैक इन 2023 हमने एक राहु केतु ट्रांजिट के ऊपर वेबिनार किया था. काफ़ी लोगों ने उसे ज्वाइन भी किया था और काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ. और इसी वजह से मैं इस बार भी राहु केतु से ही शुरुआत करना चाहता हूँ. हालांकि बहुत सारे मेजर ट्रांजिट्स हैं जो इस साल होने वाले हैं और हम वो सभी के सभी डिस्कस करेंगे. अगर आप लोग ऐसे ही वेबिनार्स में आते रहें तो डेफिनेटली वी विल बी लर्निंग मोर. बट फॉर टुडे इट्स राहु एंड केतु transit in 2025. So this transit is going to happen in June, but the effects will begin in May second week. Around 18th of May से वैसे तो जो इफेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज राहु जब 1 डिग्री का रह जाता है पिछले साइन में तो वो अगले साइन का रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है. And Rahu and Ketu are the only planets that are always considered in retrograde motion. So ये आगे जाने की बजाय अपने से पिछले साइन में जाते हैं. अब मैं इतने बेसिक्स से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको बहुत बेसिक्स बताने पड़ेंगे. So what is going to happen? So this is how a normal kundali looks like. And कुंडली कहाँ से शुरू होती है? एरीज से शुरू होती है. Everybody agrees? Those who agrees that Aries is the first chart that we need to discuss, please raise your hands. Okay, very good. But Aries needs to learn patience. So इसलिए I'll not begin with Aries, rather I'll begin with Pisces. So Aries, you will be coming at end. Okay? For now, let's see right now का transit chart. And then we will be discussing there. So right now, अभी 6 नंबर लगन चल रहा है, यानी कि it is Virgo ascendant going on right now. Ketu is here, Rahu is here at this particular moment, right? No confusions. Everybody knows that Ketu is right now in the 6th sign, Rahu is right now in the 12th sign. Okay? So let's make this here. This is here. This is here. Before moving to the charts, we need to understand कि ये अभी होगा क्या. So जैसा कि मैंने कहा, Rahu is going to move backwards and Ketu is also going to move backwards. So Rahu is going to enter into the house of Aquarius, which is the 11th sign,
and Ketu is going to go into Leo, which is the fifth sign. No confusions? Everybody got this? Very good. So now we need to understand what is Rahu and what is Ketu. If we know what is Rahu and if we know what is Ketu, we can start predicting on this. It is that easy. Rahu kya hai? Anybody who wants to say a few words about Rahu, please raise your hands. Okay, I'll let you unmute yourself and we'll see who knows a bit about Rahu. So, Sejal ji, start कीजिए. What do you know about Rahu? Attachment. Okay, very good. Rahu is attachment. Okay, so Rahu is attachment and Ketu is detachment on the other hand. Detachment. Right? Yes. Very nice. And what else? Hanji Anita ji, what is Rahu? It's obsession. It's It's delusioning. obsession. It's delusion. और क्या है? And on the other hand, what's Ketu? Ketu is let go. Ketu is let go. Okay, very nice. Hanji, Samrit ji, what is Rahu and what is Ketu according to you? Sir, Rahu is also manipulation, ambitions, intelligence. Manipulation, ambition, and intelligence. And on the other hand, what's Ketu? It is the exact opposite. It is detachment लिख लिया. and it is devotion. Very nice. So in devotion, there is no manipulation. Right? So manipulation is right opposite to devotion. And because Rahu is making you ambitious, Ketu is making you, oh, no, I don't want to do this, let it be, just let go, right? Hanji, Shivani ji, what is Rahu and what is Ketu according to you? And please turn on your camera as well. Rahu is illusion and Ketu is past reality, past karmas. ओके एक मेरा क्वेश्चन है शिवानी जी, आप कैमरा ऑन कीजिए. If Ketu is ruling the past karmas, then why Saturn is taking care of the karmas here? We know that Saturn is taking care of the karmas, right? Then if Ketu is the past life karmas, then why Saturn is taking care of it? Why not Ketu? सर केतु में जो हम जी चुके होते हैं चीज को, और सैटर्न जो है वो हमारी इस समय ड्यूटी है कि हमें ये काम करना है. ओके नहीं, ऐसा तो नहीं है. चलो कोई बात नहीं, विल कम टू दैट वेरी सून. सो दैट्स ऑल. अभी के लिए मैं इतना ही लूंगा, बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ. यू कैन जस्ट टर्न योर हैंड्स डाउन. आपकी बारी फिर से आएगी. सो राहु इज डिजायर. ठीक है, राहु सबसे बड़ी इच्छा है. आपका जो जन्म है वो राहु की वजह से हुआ है. Always remember that your birth is happening. You took birth on this planet because of Rahu. Let's understand Rahu. मैं केतु को नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि फिर लेसन बहुत लंबा चला जाएगा. मैंने राहु भी नहीं करना था, बट अभी मेरा माइंड बन गया है राहु एक्सप्लेन करने का. सो लेट मी एक्सप्लेन यू राहु. व्हाट इज राहु डूइंग? राहु क्या करता है? हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे पंचांग ऑफ राहु. ठीक है, सबके पास टाइम है? घर से टाइम निकाल के आए हो ना सारे? टर्न ऑन योर कैमराज प्लीज. मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू वॉल्स, स्पेशली जो लोग मेरे सामने हैं. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द पंचांग ऑफ राहु. अब राहु के पास क्या है? सबसे पहले राहु के पास अपना साइन है, विच इज 11th साइन, एक्वेरियस. We know Rahu is having Aquarius, own sign. Very good. What else is Rahu having? Rahu is having third sign. थर्ड साइन में राहु का क्या होता है?
राहु एग्जॉल्टेशन में जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको सेकंड साइन भी मानते हैं। टॉरस में अगर आप नक्षत्र के हिसाब से देखोगे तो टॉरस में जाकर के एग्जॉल्टेशन पॉइंट बनेगा, लेकिन अभी के लिए बिकॉज वी आर लर्निंग बेसिक्स तो आई विल बी स्टिकिंग टू द थर्ड साइन। सिक्स साइन इज द empty, which is the मूल त्रिकोणा. This is where Rahu rules. Now, why Rahu rules over these three signs, we will be understanding that in detail. Aquarius is your wishes. Aquarius is the desire that you had maybe in your past lives. It is 12th from 12th, 12वें से 12वां है, तो यहां से चलते हुए आप यहां पर वापस आते हो बिकॉज यू हैड द पेंडिंग डिजायर्स। और बुद्ध कहते हैं कि इच्छा सोच समझकर मांगनी चाहिए क्योंकि इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सो वट एवर यू डिजायर इन द लाइफ, देयर विल बी सम लाइफ वेयर यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग। ओके, अगर आप आकाश में पंछी की तरफ देखकर कहते हो कि काश मैं वो पंछी होता, तो एक लाइफ में आप वो पंछी जरूर बनेंगे बिकॉज आपने प्रकृति को एक अपनी इच्छा बताई, एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी आपने यूनिवर्स की तरफ थ्रो की, एंड नाउ द यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट इट हैपेंस। ओके, दैट इज व्हाट राहु इज, इनफाइनाइट यूनिवर्स. And in that infinite universe, you throw a desire, which is why you take birth. Rahu is desire. What else is Rahu? Rahu आपको यहां पर ड्यू टू दिस डिजायर भ्रष्ट कर देता है. What is Virgo? Virgo is a small virgin girl. Now Rahu wants to take over this. Rahu wants to make your mind manipulate due to these wishes you have in your mind, and it puts efforts to make sure that this gets destroyed. Okay? That is the reason Rahu got these three signs, because Rahu is working on the manipulation, Rahu is working on your communication, on your efforts, and whole effort here is to destroy this sign. और हम देखने में कहते हैं अरे सिक्स साइन का सिक्स्थ हाउस का राहु है, बहुत अच्छा है. अच्छा तो है, लेकिन उसने आपको भ्रष्ट कर दिया है. ठीक है, दैट राहु इज मैनिपुलेटिंग यू इन मेनी वेज. एंड नाउ व्हाट्स गोना हैपन? राहु इज गोना एंटर हिज होम. Once Rahu is going to enter his home, he will be affecting the third sign, he will be affecting the sixth sign. Okay? Now sixth from sixth is Aquarius. That thing will be affected. 11th from 11th will be affected, ninth sign. So what's going to happen? What is ninth sign? Ninth sign is religion. Ninth sign is a basic cause of war. Ninth sign is the basic sign for war. Why? हाथ में धनुष बाण लिए खड़े हैं युद्ध के लिए, और 99.9% युद्ध आपके धर्म की वजह से होते हैं, आपके बिलीव्स की वजह से होते हैं. Right? We are too rigid on certain things. We want to protect ourselves. We want to protect our beliefs. We want to protect our faiths. We want to protect our religion. And that's why we get into fight. And when it enters Aquarius, you might see these kind of things happening. You might see कि कहीं ना कहीं यहां पर प्रॉब्लम आएगी. रूलरशिप चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट्स चेंज हो सकती हैं, सत्ता चेंज हो सकती है, बिलीव्स में प्रॉब्लम आ सकती है. अथॉरिटी कुड बी कमिंग इनटू ट्रबल. नाउ व्हाई अथॉरिटी वुड बी कमिंग इनटू ट्रबल? लेट मी गिव यू अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. Saturn will be here. Now Saturn is a co-ruler of this sign. Aquarius is ruled by Saturn and Rahu. Everybody knows it, right? So this co-ruler is in a weaker situation.
12th फ्रॉम हिमसेल्फ। अब आपको यहां पर लगेगा कि सेकंड फ्रॉम हिमसेल्फ है, लगेगा कि ये सेकंड फ्रॉम हिमसेल्फ है, बट बिकॉज राहु इज लीविंग द Pisces and entering into this particular sign, the Saturn might try to save it. एक गद्दी हो और दो मालिक हो तो प्रॉब्लम कॉज होती है, बिकॉज यहां पर Saturn will be in a weaker situation. You will see that opposition or the people who are in कहीं ना कहीं अथॉरिटी रखते हैं किसी ना किसी वे में, they might be in a weaker situation. लड़ाई झगड़े हो सकते हैं थोड़े बहुत, सत्ता पलट सकती है, गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राहु। चलो हम बेसिक सा केतु भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले और क्या हो सकता है? बिकॉज राहु इज रिटर्निंग होम एंड दिस इज अ साइन ऑफ टेक, दिस इज ऑल्सो टेक। टेक्नोलॉजी विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन कमिंग 1.5 year. In next 18 months, you will see artificial intelligence in a very good situation. You will see a lot of innovations are going to happen during this time because Rahu will be home, and when Rahu is home, he is going to start the Kali Yuga. He is going to make sure कि Kali Yuga वाली चीजें घटित होनी स्टार्ट हो जाएं। Kali Yuga वाली चीजें क्या हैं? आप कहो हे सिरी, मेरी सिरी बोल पड़ी ठीक है, you just say things and then it's just gonna happen without you putting efforts, right? The future that you are imagining is kind of happening right now. You have robots to clean your house, you have robots to make your roti, you have robots to make your sabzi. That is happening every single day. We are living in future, right? And now this future is going to transform because this Rahu is returning here after 18 years. Now, how after 18 years? Everybody knows it, right? So, what else? So, social and political reforms होने के chances हैं, AI में कुछ अच्छा होने का chances है, space explore होने का chances है, and the desire that I am talking about here, everybody remember this. If you desire Rahu, you will not get Rahu. If you don't desire Rahu, you will automatically get Rahu. जब तक इच्छा रहेगी तब तक इच्छा पूरी नहीं होगी, और जब इच्छा को छोड़ दोगे तो इच्छा पूरी हो जाएगी. एंड द रीजन बिहाइंड इट ऑल्सो द Pisces का Saturn. ओके हाँ जी, बिराजदर साहब हुकुम करो सर. व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर मुझे एक डाउट था कि आपने अभी बोला कि डिजायर अगर नहीं रखेंगे तो पूरी होगी, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि हमने कोई एम्बिशन नहीं रखना चाहिए जिंदगी में? क्योंकि अगर हम डिजायर ही नहीं रखेंगे तो वो व्हाट इज द कैसे पर्पस होगा? ऑफ लाइफ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? सर मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है और That is- साइड बाय साइड एस्ट्रोलॉजर. No, that is your purpose of life. That's not the complete purpose of life. नहीं, मुझे लगा आप मेरा पूछ रहे हैं इसीलिए सर. So the purpose of life is to understand there is no purpose at all. And the day सर you तो ठीक है, understand फायदा it, क्या है? you will automatically start going with the flow. What is something that you did by your own? There is nothing that you did by your own. It automatically happens. And when you let the universe control it, when you let Rahu control it, you will see that it's going to automatically happen. He's going to put things at right places. We are not bigger than the moon. We are not bigger than the sun. We are a very small entity, right? So once you let the hands in his thing, वो कहते हैं ना द्रौपदी की तरह साड़ी छोड़ो तो कृष्ण संभाल लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक पल्लू पकड़ी रखते हैं, कहीं कृष्ण ने ना पकड़ा तो यहां पर मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है, बिकॉज सी व्हाट इज गोना हैपन, राहु हियर इज गोना कंट्रोल योर एफर्ट्स विद दिस ट्रायंगल, right? So if he is controlling your efforts, why are you making him to control few things? You just leave it and it's gonna happen. हाँ जी अनीता जी. तो हमने हार्डवर्क करना चाहिए या नहीं? मतलब देखो, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना. You need to put the hand. खाना तो मुंह में कोई भी नहीं डालने आएगा. Yes, sir. उस पे अभी आऊंगा मैं. Whatever your लगना is will come to that. What you have to do and what you don't have to do. ठीक है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी अनीता जी.
मैं ये बोल रही थी, so it is more like you have to become like a Ketu, then Rahu will actually give you everything. Where Exactly. you don't have any desires, nothing, and I want to say that I did experience that in my life. बिल्कुल, मतलब when I've left everything, I've gotten and gotten Everything. and gotten, you know. Yeah, yeah. So that's what I wanted to point out. So become a nothing, and you Exactly. will be everything. Exactly. So, The only desire should be the desire of Ketu, moksha. yeah. हाँ जी हैरी जी, wanna say something? हेलो सर। हाँ जी सर जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। हुकुम। तो मैं यही कहना चाहता था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल, बस वही चीज है। वही चीज, एग्जैक्टली वही चीज है। देखो, जिसको श्रीमद् भगवत गीता समझ में आ गई, उसको दुनिया की कोई और नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। मैं सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत को मानता हूँ। जिसने महाभारत को अंडरस्टैंड कर लिया, अब गीता भी महाभारत में ही कही गई है, हाँ जी। तो उसने सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया। उसने युद्ध भी देख लिए, उसने विजय भी देख ली, उसने पराजय भी देख ली, उसने अपनापन भी देख लिया, परायापन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस थिंग विच इज केतु नाउ। So what is going to happen here? Ketu rules over the Scorpio sign. Everybody knows it? Ketu rules over the Scorpio sign. Now, why is he ruling over the Scorpio sign? Because Ketu is depth. Ketu is knowledge which is beyond our mind. Right? You sleep, you wake up, you had a dream, and then one day you get into a situation and then you are like, यार ये तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, यार ये तो पहले भी हुआ है। और फ्रॉम हियर, ये जो पहले भी हुआ है, अब मैं उसका जवाब दूंगा, योर इमीडिएट पास्ट लाइफ इज केतु, राइट? द डे यू अंडरस्टैंड केतु एंड द डे यू नो ये पहले भी हुआ है, तो आप कोहलू के बैल नहीं रह जाते हो। आप उस चीज को छोड़ देते हो। आपने पहले भी पैसों के पीछे भागे, पहले भी प्यार के पीछे भागे, पहले भी बच्चे पैदा किए, पहले भी करियर के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए, पहले भी माँ बाप के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया। और अब जब आपको प्रकृति मौका दे रही है कि तुम खुद के लिए कुछ करो, तुम अपने आप को जगाओ, तुम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाओ, तब तुम कहते हो नहीं, मुझे करियर चाहिए, मेरे को तो पैसों के पीछे भागना है, मेरे को कनाडा सेटल होना है, मेरे को मम्मी पापा के लिए ये करना है। एंड आयरनी हियर इज कि आपके पापा के पापा के पापा ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया, आपके पापा ने आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया, अब आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करोगे, तो एंजॉय कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। एंड दैट इज व्हाई स्कॉर्पियो इज अ लूप। यू गेट इनटू दिस लूप एंड फिर आप बस उसी में फंसे रहते हो। And the day you understand Ketu, you will exit this loop and start living. Okay, and the only way to live is being spiritual, being one with the universe, and let universe do things for you. If he is caring for the rain, he is caring for the mountains, he is caring for the forest, he will care for us as well. Right? So, मैं अभी पंचांग को यहाँ डिले करूंगा बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, बट या केतु हियर इज गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर पीपल बिकॉज इट इज गोइंग टू एंटर इनटू लियो, एंड फ्रॉम लियो इट इज गोइंग टू बी द 9th हाउस को ये एक्टिवेट करेगा, स्पिरिचुअलिटी को एक्टिवेट करेगा, एंड 5th हाउस इज पास्ट लाइफ एज वेल एंड योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस. सो मे बी you might be able to understand some frequent experiences from your past life, and then now this is a time to enter into that spiritual loop and leaving that material loop. And trust me, if you will enter into the material spiritual loop, the material loop is going to come automatically, because that is why we say Rahu and Ketu moves together, right? You make sure that Ketu is working, Rahu will automatically come. And if you make sure that Rahu is coming, the Ketu will automatically will come, right? With the profit there is loss, with the loss there is profit. With the day there is night, with the happiness there is sadness. And मजा यही है कि दोनों चलते रहे.
सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अच्छा टाइम रहेगा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडरशिप होगी बिकॉज लियो है एंड केतु इज डिटैचमेंट. सो लियो इज लीडरशिप, so the leadership will be detached. Okay, what else? Challenges to the fifth house. What is fifth house? Fifth house is cinema, fifth house is hobbies, fifth house is extracurricular activities, fifth house is kids. So these kind of things will be facing challenges. All right, so now let's understand Ketu and Rahu with few more keywords. We have attachment, detachment, we have obsession and let go, we have manipulation and devotion, we have illusion and past lives. Then we have, so remember Ketu क्या है? Ketu split है, ठीक है. Rahu change है. Rahu will bring change and Ketu will bring split. अब मैं सारे कीवर्ड्स यहां पर यूज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है. तो मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स के साथ आपको सभी के सभी लग्नास के ऊपर ये समझा दूं. ओके ओके, सो पीपल विद द पाइसेस असेंडेंट प्लीज रेज योर हैंड्स. Nobody is with the Pisces ascendant here. Wow, that's great. Do you even know your ascendant? किसी को कोई ऐसा है जिसको अपना ascendant ही नहीं पता? Oh, we have somebody with Pisces, Suman ji. So let's understand how it is going to affect Suman ji. ठीक है? So for that I'll need to make Pisces ascendant here. So 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So कीर्ति जी का भी जो है वो वही है. So what is going to happen? Rahu is going to enter here. Ketu is going to enter here. Everybody knows about houses. Anybody who doesn't know about houses, please raise your hand. Everybody knows about houses, right? It's great to see learned people in the webinar. So what's going to happen here is, so because Rahu is attachment, Rahu is a change. Okay, let me tell you one thing very beautiful about Rahu. Whenever Rahu goes in the 12th house, let it do whatever it wants to do. Do not interfere with Rahu in the 12th. If you will interfere with Rahu in the 12th, he is going to make sure कि जब वो 11th में आएगा तो वो आपको पूरी तरह से घुमा देगा. ठीक है, बिकॉज यहां पर इच्छा किसकी चलेगी? राहु की चलेगी. लेकिन अगर आप अभी जो राहु चाहता है वो करने दोगे तो फिर जब राहु यहां आएगा तो फिर आप ही की इच्छा चलेगी क्योंकि आपने राहु को यहां पर इच्छा जताने का मौका दिया. ओके, नाउ बिकॉज दिस इज अ चेंज एंड इट इज कमिंग इन द ट्रायंगल ऑफ 4, 8 एंड 12, देयर माइट बी अ चेंज इन होम. ओके, राहु इज एक्सपेंशन, राहु इज इनफाइनाइट एक्सपेंशन. Okay, so there might be a change of home, buying of property and vehicles because of this. Learning more of astrology and 8th house को और ज़्यादा expand करेंगे यहाँ पर. राहु is attachment to foreign land, तो कोई ना कोई foreign land का कुछ ना कुछ बनेगा, आप कहीं ना कहीं बाहर भी जाएंगे. कीर्ति जी wanna say something? और आप फिर अपना हाथ नीचे कर लीजिए. थैंक यू. हाँ जी, ग्रेट. सो ठीक है, तो यहां पर ये फॉरेन अटैचमेंट लेकर आ रहा है, घर चेंज लेकर आ रहा है, व्हीकल परचेजिंग लेकर आ रहा है, ऐसे की चीजें ये यहां पर लेकर आ रहा है. और केतु यहां पर ही इज गिविंग अ स्प्लिट इन फैमिली, स्प्लिट इन करियर. नाउ स्प्लिट डजंट मीन बैड, जरूरी नहीं है हर बार स्प्लिट बैड ही हो. तो ये हो सकता है कि इनकी कोई एफडी मैच्योर होने वाली हो तो वो पैसा आ जाए. ठीक है, बिकॉज दिस इज फाइनेंसेस. ठीक है, करियर में स्प्लिट का मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जॉब ही जाए, जा भी सकती है. बिकॉज केतु इज डिटैचमेंट फ्रॉम द करियर, केतु इज डिटैचमेंट फ्रॉम द फाइनेंसेस, बट इट माइट ऑल्सो स्प्लिट इट. इनकम सोर्सेज को स्प्लिट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, आप एबीसी बिजनेस कर रहे हो और इसके साथ आप XYZ करना स्टार्ट कर दोगे. ठीक है, कोई ना कोई इनकम सोर्स स्प्लिट हो जाएगी.
तो मैं ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को नेगेटिव ही लेकर चलो, बट बिकॉज दिस इज केतु इट माइट गिव यू हिडन डिजीजेस, इट माइट गिव यू स्किन डिजीजेस. Okay, so that kind of things are gonna happen. Now let's turn to Aquarius ascendant. Anybody with Aquarius ascendant, please अपने हाथ ऊपर कर लो. So Priyanka ji is having Aquarius. तो सादा पूरा बना ही देते हैं, चलो. ओके, आपका भी Aquarius है. So now understand sir आपके साथ क्या होने वाला है. ठीक है. Gina ji is also having Aquarius ascendant. So for Aquarius, Rahu is going to enter into your head. Whenever Rahu gets into your head, you become over ambitious. You become super manipulative. Okay, you want to do this, you want to do that, and here it makes you very good beginner but not very good finisher, because natural placement up here is going to be of Ashwini nakshatra. And Rahu is going to take that opportunity to make you start a lot of things but might be unable to complete those things. So here, learn patience. Go slow. If your head is making you do that, do that. Avoid smoking. यहाँ पर राहु आपको स्मोकिंग की तरफ लेके जाएगा, बिकॉज अभी अभी ये यहाँ से आया है, ऑलरेडी ये इस चीज को छोड़कर आया है. यहां पर भी स्मोकिंग स्टार्ट हो जाती है. कई लोगों की स्मोकिंग स्टार्ट होती है लगभग 18 साल की उम्र में, जिनका राहु यहां पर हो, क्योंकि राहु रिटर्न करता है. ठीक है, कई लोगों की होती है. नहीं हुई तो आपका गुरु स्ट्रांग है. ओके, बिकॉज दिस स्पाइसेस इज स्ट्रॉन्गर. गुरु उसको संभाल रहा है कि नहीं 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 करना है, विल पावर स्ट्रांग दे रहा है. राइट. Rahu from here is expanding this triangle. This is knowledge. This is astrology. So, Birajdar ji, you might be entering into astrology here because Rahu is going to expand it. Rahu is expanding higher studies. Right? Rahu will be expanding this. Ketu, hanji, partner ke sath breakup, detachment. Emotional detachment from the partner could be happening here. Emotional detachment could be happening from the brother, sibling. Sibling से दूर जा सकते हो क्योंकि higher studies activate हो रही हैं. ठीक है. Close friend आपको छोड़कर जाएंगे. Be aware of your close friends and close circle at this particular time. There might be trouble. Okay? हाँ जी. हाँ जी, Anita ji, you want to add something? Yes, I was asking that wouldn't we also look at the aspects though, Rahu or Ketu ke? ये aspects ही है जी, 1, 5 and 9, right? So Yes. 7th, So okay. Let me clear Yeah. one thing about 7th aspect. There is no 7th aspect. Oh, क्यों, कैसे, ऐसे कैसे? Okay, let me tell you. So 7th aspect is mentioned, but it is not mentioned as the aspect. It is mentioned as the part. So this is Rahu, this is Ketu, and they are split. इनको काट दिया गया, right? तो क्या आप नीचे सर करके चलते हो? Do you always walk like you are looking at your feet? And does your feet always look up to you? That what mind is thinking? No, it doesn't, right? So what truly happens here is, if something touches your feet, your mind automatically gets to know. You don't need to look down there. Do you need to look down there to know what's going on with your feet? You just get to know automatically. So that is what is happening with the 7th aspect. You automatically get to know what is going down there, and from down there it automatically gets to know what instruction is coming from the head. So this drishti or this aspect has to be taken only when some other planet influences with this Ketu, or the other planet influences with this Rahu, because any planet influencing Rahu will be affecting this Ketu, or this Ketu will be the first one noticing that thing happening.
or this Ketu will be manipulated by some other planet and Rahu will be the first one to know it. For example, on your feet, आपके पैर पर एकदम चींटी चढ़ जाए, सबसे पहले किसको पता लगता है? आपके सिर को पता लगता है, आपका ब्रेन आपको आगाह करता है नीचे देखो, फिर आप नीचे देखते हो क्या है, और जब आप नीचे देखते हो आपको खतरा महसूस होता है, आप पैर पीछे कर लेते हो, राइट? या आप उस चींटी को साइड पे कर देते हो. सो दिस एस्पेक्ट इज यूज्ड फॉर रेमेडीज. फॉर एग्जाम्पल, ऑन दिस केतु व्हेन द मार्स इज ट्रांजिटिंग, योर राहु विल बी नोइंग. सबसे पहले राहु को सबसे पहले पता लगेगा कि मार्स प्लस केतु है, एक्सीडेंट हो सकता है. और जब सबसे पहले इस राहु को पता लगेगा, हम उस टाइम पर राहु को यूज कर सकते हैं इसकी रेमेडी के लिए. सिमिलरली, दिस केतु विल बी नोइंग द फर्स्ट थिंग हैपनिंग इन द हेड. तो आई होप मैं आपको थोड़ा सा ये पूरा लेसन है 7th एस्पेक्ट का, अगर मैं उस पर जाऊंगा तो 1 घंटे का क्लास वही हो जाएगा. आई डोंट वांट टू गो देयर, बट या आई होप इट इज क्लियर. अनीता जी समझ में आया? ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ इट. ही इज नॉट लुकिंग एट इट ऑलवेज. ही नोज व्हाट्स गोइंग डाउन देयर, बट ही इज नॉट constantly looking. Okay, but he might be constantly looking at 5th and 9th house. Okay, what's happening here? What's happening here? Correct. Fifth and 9th का तो देखेंगे हम. Yeah, so वो तो हमने triangles में ले लिया ना. Similar Okay, thing. okay. ठीक है? Oh, that way. I Right. see. Got it. Triangle is 5 and 9. So we take Yeah, it that way. fine, It's that's easier correct. to see That's in right. trigonas. Uh-huh. That's correct. हाँ जी, हुकुम समृद्ध जी. सर, और मुझे एक और डाउट था कि हमें ये फाइंड आउट कैसे करना है कि वो प्लेनेट हमारे लिए अच्छा वर्क कर रहा है गलत. मतलब जब मैं आपको कोई भी वैसे वीडियो दिखता है ना कि इज दिस योर प्लेनेट वीक, ऐसा वीडियो जब दिखता हूँ ना, तो मुझे सारे प्लेनेट्स वीक ही लगते हैं सर. देखो ऐसा नहीं है, हर प्लैनेट आपको सिम्टम देता है अपना वीक और स्ट्रांग होने का. सिम्टम देता है, जैसे मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपने वीडियोस देखी हैं. हर सिम्टम आप में थोड़ा थोड़ा होता है, हर सिम्टम होता है, क्योंकि हम भगवान भी हैं, हम इंसान हैं. इंसान में ऊपर से लेके नीचे तक कमी है. ठीक है, थोड़ी सी कमी यहां भी है, थोड़ी सी कमी यहां भी है, थोड़ी सी कमी यहां भी है. अपने चक्रों को सक्रिय करो. ठीक है, जब आप अपने चक्रास को सक्रिय करोगे, आपके प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएंगे. इवन कुंडली में नीच के बैठे हो, रेट्रो बैठे हो, कंबस्ड बैठे हो, डजंट मैटर. Once you start working on the chakras, for example, if you start working on the crown chakra, your Jupiter will be automatically getting good. Yes sir. ठीक है, if you start working on Mooladhara chakra, your Venus and Mars is automatically gonna give you good results. So इस पे भी हम एक वेबिनार रखेंगे, the chakras connected to the planets and how to activate it. Okay, we will make sure that we do it. Yes sir. So कौन से लगन पे थे हम? Capricorn, right? We are done with Aquarius? Yeah. So who is the Capricorn ascendant here? कल युग के बंदे कौन हैं? तो मैं एक और बात बोलूं, अगर एक्वेरियस में जब राहु है और केतु लियो में 5th में है, सॉरी 7th में है, ओके, देन 3rd and 11th को वो एस्पेक्ट करेगा, और राहु विल बी इन द धर्म त्रिकोण. सो राहु कैन ब्रिंग यू, टेक देम टू द धर्मा, all those things also. It might change your dharma, it might change your perspective towards dharma. Okay, it might make you think like, oh no, my religion is not too good, let's try something else. Right? It might manipulate you because he is controlling the head now. Right? Chalo, great. Yeah. So the people with the Capricorn ascendant, सबसे पहले Capricorn is one of my favorite ascendant, क्योंकि ये कलयुग के लोग होते हैं और इन लोगों को लाइफ में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन 50% लाइफ खत्म होने के बाद. तो we will come there later. So Rahu will be in the 2nd house. Very good. Expansion कहां पर? Finances में. Expansion in the family. There might be some marriage happening in the family. कहीं दूर के रिश्तेदार की किसी की शादी है और घर पे एक लड़की ऐड हो गई है. ठीक है, बिकॉज राहु इज एडिशन, राहु इज मल्टीप्लीकेशन. कोई ना कोई एडिशन होती है आपकी लाइफ में. फाइनेंशियल एडिशन हो सकती है, फैमिली की एडिशन हो सकती है. व्हाट एल्स? यहां पर हमने और क्या क्या लिया राहु को? इल्यूजन,
इल्यूजन ऑफ अर्निंग मनी, कि मैं तो बहुत पैसे कमा रहा हूं, ऐसा इल्यूजन हो सकता है। चेंज इन कर्मा, 10th हाउस। अब देखो अनीता जी, इसको मैं कैसे ले रहा हूं, मैं इसको ट्रायंगल में ले रहा हूं, राइट? इट्स अ दृष्टि और त्रिकोण है, सेम थिंग। सो यहां से इट माइट बूस्ट योर करियर, इट माइट इंक्रीज योर करियर, और इट माइट चेंज योर करियर, बिकॉज राहु चेंज भी है, बदलाव भी है। राहु आपका डेली रूटीन में बदलाव ले आएगा। 6th हाउस इज डेली रूटीन। नाउ दैट्स अ रेमेडी, चेंज योर डेली रूटीन जैसे ही राहु यहां पर एंटर हो, बिकॉज केतु यहां पर आ रहा है। ही माइट डिटैच यू फ्रॉम लाइफ। इट्स नॉट जस्ट लाइफ, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा, but it might detach you from some events that you could have experienced, but now you will not because of your routine getting changed. ओहो, अरे यार मैंने तो इस डिग्री में एनरोल कर लिया, अब तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा और मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा। ठीक है, सो चेंज योर लाइफस्टाइल। डोनेट सिगरेट्स, डोंट ईट अ लॉट ऑफ फूड, बाहर का खाना मत खाना। 2nd हाउस में आपको टेम्पटेशंस होंगी, आपको बाहर का खाना खिलाएगा राहु, आपको स्मोक करा सकता है राहु, अगर यहां पर सैटर्न स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, डेली रूटीन में चेंजेस आएंगे, डेली रूटीन में एक्सपेंशन होगी, करियर में चेंजेस आएंगे, करियर में एक्सपेंशन होगी। राहु आपकी रेपुटेशन पर दाग लगा सकता है अगर आपका शुक्र आप खराब करते हो तो। ठीक है, सो डोंट बी इन्वॉल्व इन इलिसिट थिंग्स, यू डोंट नीड टू। केतु ऑन द अदर हैंड, if you are trying for abroad, there might be a rejection. Okay, you will be seeing this. Ketu in the 4th house, you might be detaching from the family. So see, now this is a contradiction. आप बाहर नहीं जा रहे लेकिन फैमिली से डिटैचमेंट हो रही है। सो इफ बाय चांस योर वीजा गेट रिफ्यूज्ड, रीअप्लाई इट। ओके, डू इट अगेन। व्हाई डू इट अगेन? which is this sign? That is Sagittarius, ruled by Jupiter. जुपिटर का एक बड़ा प्यारा नक्षत्र है पुनर्वसु। दोबारा से बस फिर से ट्राई कर, वन मोर ट्राई, एंड इफ यू विल डू दैट वन मोर ट्राई, यू विल सी इट्स गोना हैपन। ओके, हाँ जी सम्राट जी। सर और मुझे एक और डाउट था कि हर नक्षत्र कैसे देखते हैं, मतलब हर हाउस का। सर वो बड़ा लंबा लेसन हो जाएगा, उसके लिए आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। नक्षत्र के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट वे। आपका कोई वीडियो है क्या सर, मतलब उससे रिलेटेड? सर आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे कोई फ्री में तो वाला वीडियो नहीं होगा इसमें, ये हमने अपने कोर्सेज में किए हैं, बट वी माइट होल्ड सम वेबिनार्स ऑन नक्षत्र एज वेल। ठीक है, ओके सर, या। सो नाउ फॉर दिस थिंग, Sagittarius ascendants, raise your hand. Okay, यश जी Sagittarius, राज जी Sagittarius, दो ही जने हैं Sagittarius ascendant वाले। चलो, let's see what's gonna happen to the Sagittarius ascendant. Rahu is going to enter in the 3rd house. What is 3rd house? प्रजक्ता जी नींद आ रही है? इतना तो नहीं बोर कर रहा यार मैं। So what's gonna happen here is Rahu is gonna enter into the 3rd house. 3rd house is your communication skills. You might be becoming a liar. So Sagittarius पे भरोसा नहीं करना अगले 1.5 साल, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जुबान पर राहु बैठा है। Rahu will be taking care of the communication. They will be lying to you, especially for the relationship. Don't trust them on the relationship part. Okay, and don't trust them on the Aquarius 11th house part as well. ठीक है, so अब यहां पर क्या होने वाला है? Rahu is going to expand the 3rd house. 3rd house is short travels. You will be going somewhere. You will be having a short travel. You will be experiencing a short travel. Rahu is here. You might get married. It is going to activate marriage for you. It is going to expand marriage for you. He is also going to expand networking for you. Meet more people. Don't focus on earning money rather than focus on talking to more people. Because just by hanging out with
right people, you will automatically earn money, because from here Rahu is going to enter here बाद में. तो राहु आपको पैसा देगा बाद में, अभी जरूरत नहीं है. अभी सर्कल बनाओ, अभी नेटवर्क बनाओ, अभी और लोगों को जानो. पैसा जब यहां आएगा तब ले लेंगे. समझ में आ रहा है? अब देखा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द यूनिवर्स. बट हियर अगर यहां पे बंदा इसकी तरफ भागे कि यार मेरे को तो अभी पैसा चाहिए, तो अभी पैसा नहीं आएगा. अभी लिंक्स आएंगे, अभी लोग आएंगे, अभी आपको लोग जानेंगे, एंड जब ये यहां आएगा यही लोग आपको पे भी करेंगे. ठीक है? सो फ्रॉम हियर दिस हैपेंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड केतु. केतु इन द 9th might detach you from your father. Take care of your father's health if he is having, मैं तो दुआ करूंगा बहुत लंबी उम्र हो सबकी, लेकिन यहां पर केतु कहीं ना कहीं फादर से डिटैच करता है, अपने धर्म से डिटैच करता है, आपकी हायर एजुकेशन से डिटैच करता है. लेकिन यहीं का केतु आपके फादर को एग्जॉल्टेड भी करता है. रिमेंबर वन रूल, whenever Ketu is in the Dharma Trikona, in the Lagna, in the 5th house or in the 9th house, your son will act as if he is exalted. चाहे वो लिब्रा में क्यों ना हो, स्वाति नक्षत्र 10 डिग्रीज पे क्यों ना हो, टेंशन नहीं लेनी. ठीक है? तो यहां पर फादर की ग्रोथ भी हो सकती है. शर्त एक ही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज करना है, आपको धर्म के प्रति सही रहना है, धार्मिक तरीके से काम करना है, नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं जाना है. ठीक है? सो ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर very much indulged into the spiritual activities, and because this is short travel, this is dharma, तो धार्मिक ट्रेवल भी हो सकते हैं आपके. You might travel a trip for some dharmic purpose. Got it? चलो, let's move to next ascendant. हाँ जी, स्कॉर्पियो ascendants. Hand raise. Nobody Scorpio here? So nobody's gonna bite me back. So Scorpio, very interesting nakshatra, very interesting sign. This sign is actually the sign of transformation, and these people are the self-made people. फादर साहब का किया इनके कुछ ज़्यादा काम नहीं आता है. ये जो करते हैं खुद करते हैं, अपने बलबूते पर करते हैं, और यूजुअली जो भी करते हैं उसमें बहुत राइज करते हैं. But again later in their life after going through a lot of transformations. Okay, so I have a salute for this particular sign because they see a lot of ups and downs, they face a lot of turbulence in their life, and yet they are always having a smiling face. So for them, Rahu is going to be in the 4th house, Ketu is going to be in the 10th. So simple rule, gain of house, gain of vehicle, gain of education, gain of books, this could be happening. Detachment from career, detachment from reputation could be coming. Rahu is looking at the 12th. Finances should be invested in abroad. Okay, you might spend money on abroad because this is also expenditure, right? And Rahu is going to increase your expenditure. So just invest your money somewhere in abroad, or invest your money on the partner, 7th sign. 8th house, this is going to increase your need or want to learn astrology, occult sciences, what happens after death. You might enter into meditation, you might enter into occult sciences. And Ketu, you might see split in the family, you might see loss in the family, you might see loss in the finances. So the best way here is, because this is Sagittarius, this is Ketu, sell your gold. थोड़ा सा सोना बेच देना. जैसे ही ये योग शुरू हो, sell a bit of your gold and you will be saved from these losses. Okay, because you are doing it by yourself. Ketu here is going to spoil your daily routine, and then you might feel like अरे यार मैं ऐसे करता था वैसे करता था, अब मैं कर नहीं पा रहा. ठीक है? So that thing is going to happen. हाँ जी. So Libra ascendants, raise your hand.
Ria ji, I couldn't see you. Can you turn on your camera? Harry ji, Libra, very nice. So for the Libra, Rahu is going to enter in the 5th house. Okay, possibility of childbirth is there because of expansion happening in the 5th house. Possibility of abortion is there. Don't abort your child. In fact, don't have a child during this time. And even if you have, at least don't abort him. ठीक है, तो abortion, miscarriages, these kind of things are possible here. And because Rahu here is also going to activate पित्र दोषा, तो अगर आपके चार्ट में पित्र दोष है तो ये राहु आपको थोड़ा सा तंग करने वाला है. ठीक है, बिकॉज 159 में ये पित्र दोष को एक्टिवेट कर देता है. ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. अगर आपके चार्ट में पित्र दोष है और राहु यहां ट्रांजिट कर रहा है, यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम. गॉट इट? फ्रॉम हियर राहु इज गोइंग टू बी लुकिंग एट द फर्स्ट हाउस. आपके माइंड को एक्सपैंड करेगा, लेकिन यहां पर राहु बुद्धि भी भ्रष्ट कर सकता है. वाई? बिकॉज राहु इज इन द त्रिकोणा इन ओन साइन, वेरी स्ट्रॉन्ग. त्रिकोण में आकर के अपने साइन में बैठा है, वेल्थ एक्टिवेट करेगा, पैसा जरूर देगा, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट करके. यू माइट थिंक ऑफ इलिसिट वेज ऑफ अर्निंग मनी. ओके, from here it is going to look at the 9th house. Again, change of dharma, understanding other religions, understanding what's happening in the 9th house, knowledge. You might go somewhere for higher studies. Okay, that kind of thing is possible. Now, Anita ji, you want to ask something or you want to add something? Yes. For Yes, Pitra I dosh, you want to had ask some that, question, Abhi. right? Are you able to hear me? Yeah. Yeah. So I was going to ask that, in the 5th house, could it be that, the aapne bola abortion, or but it could also be IVF, and people have to use artificial and Yep. foreign Yep. objects to get the children. Yep, definitely. Right. There is a 100% chance of it. तो IVF भी हो सकता है, because this is technology, right? Rahu Yeah. is Kali Yuga, so he might activate artificial pregnancies. He might activate sudden pregnancies, unwanted pregnancies as well, right? You don't want to get pregnant and then you end up being pregnant. ठीक है, तो वैसे की possibility भी है. Ketu from the 11th, you will see that you don't like your friends anymore. You don't like your circle anymore. You don't like your network anymore. Especially anybody having authority over you, you don't like him or her. Okay? But from here, Ketu is going to enter into the 3rd house as well and the 7th house as well. You might not even say things on the face. आपके शॉर्ट ट्रेवल में खलल पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन में खलल पड़ेगा. ठीक है, यू विल सी कि आप कहना कुछ चाहोगे, सुन किसी और को कुछ और जाएगा. योर कम्युनिकेशन विल बी स्प्लिट. आप जो कहते हो वो लोग सुनते नहीं है, और जो आप कहना चाहते हो या नहीं कहना चाहते वो लोग सुन लेते हैं. ठीक है, रिलेशनशिप में ट्रबल आएगी, स्पेशली इफ मार्स इज एफ्लिक्टेड एंड वीनस इज एफ्लिक्टेड. ओके, तो ध्यान रखना है, बी अवेयर ऑफ द रिलेशनशिप्स, एंड इवन दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर मैरिज. ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपका रिलेशन है यहां पर, देखो 5th हाउस इज रिलेशनशिप्स, राहु इज एक्सपेंडिंग इट, बट केतु इज नॉट लेटिंग यू मैरी देयर. Getting the point? You might be having a girlfriend, you might be having a boyfriend, you might be having somebody entering into your life in during this time, but you might not be able to get married to this person. ठीक है? So during this time, avoid marriage. हाँ जी, Harry ji, you want to say something? Yes, sir. I have just one question. Like, when Rahu is coming in 5th house, like in my kundali, I have Rahu in 1st house, Jupiter. So will it increase the creativity and out of the box thinking? Yeah, it will, because it is coming in the Kendra to himself. And the Jupiter Gochar is coming in 9th house. देखो, वो तो फिर दोनों तरफ से डबल पितृ दोष एक्टिवेट हो जाएगा ना. तो लगन से भी गुरु को वो देखेगा, नेचुरल राहु, एंड देन ट्रांजिट राहु विल आल्सो बी लुकिंग एट द गुरु. यू नीड टू टेक केयर ऑफ एल्डर्स, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द रिलीजन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द धार्मिक पाथ दैट यू आर टेकिंग. Like, okay. As I'm already sattvic and doing a lot of mantra japs. बस ठीक है, that's good.
and take care of your liver as well. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, great. So let's understand Virgo ascendants. हाँ जी, Virgo ascendants, raise your hands. रूबी जी इज वर्गो ascendant. हैरी जी आप तो लिब्रा ascendant थे. अच्छा हाँ. So we have just one Virgo ascendant. Very nice. So Virgo is a boat that doesn't go anywhere. They feel stuck in their life. And Virgo is a person who is remaining like a child for all their life. And because they are like a child, they might be misused, they might be misjudged, and they might not be able to use the capabilities that they have inside them because they are considered that they are just child. ठीक है. So Rahu is going to enter into your 6th house, Ketu into the 12th house. Very good feeling. 6th house राहु सबने सुना होगा, ये डिजीजेस को खत्म कर देता है, ये दुश्मनों को खत्म कर देता है. Why? Because Rahu doesn't have the stomach, and wherever it goes, it starts eating it. So it's gonna eat your enemies, it's gonna eat your problems, it's gonna eat your debts. But remember, there is a thing called illusion. So Rahu might make you think or let you remain in some kind of illusion कि सबसे पहले यहाँ पे बीमारी डायग्नोस नहीं होती. ओके, यहाँ पर डायग्नोस्टिकली प्रॉब्लम आती है, डायग्नोसिस नहीं होता है. आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो, आपको उसका सही सोल्यूशन इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि आपका सही डायग्नोज नहीं बन पाता. तो फॉर हियर द राहु नीड्स अ लॉट ऑफ रेमेडीज जस्ट टू फाइंड द प्रॉब्लम. And from here it is going to expand your finances, it's going to change your career, and while changing your career your finances will increase. So it's better to change your job, it's better to change your career. ठीक है. केतु, there is a problem in the house. घर पर डिटैचमेंट होगी, घर वालों से डिटैचमेंट होगी, अब्रॉड से आप वापस आना चाहोगे लेकिन आ नहीं पाओगे. ठीक है. या फिर because right now if you are foreign settled, you might have citizenship or the permanent residency of the country, then that particular thing is your 4th house, right? तो वो 4th house से डिटैचमेंट हो जाएगी तो आप होम कंट्री विजिट कर सकते हो. ठीक है. बट फॉर दैट यू नीड सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ दैट कंट्री फॉर मोर देन 3 years. Why 3 years? That's a secret. ठीक है. 3 years क्यों? अब मैं 3 के लिए दो चीजें बताया था. नंबर 1 बिकॉज ऑफ द केतु एंड नंबर 2 बिकॉज ऑफ मरकरी. बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद द 3. सो द लियो असेंडेंट्स, रेज योर हैंड. प्रदीप जी, हर्षित जी, यार काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा सर प्लीज. यू नो इट फील्स लाइक आई एम टॉकिंग टू वॉल्स क्योंकि आपके चार्ट का डिस्कशन हो रहा है तो आपको देखे तो सही. कर लिया क्या किसी ने? पता नहीं. चलो. केतु इन द लग्न, राहु इन द 7th हाउस. स्ट्रॉन्ग योग फॉर मैरिज, वेरी स्ट्रॉन्ग योग फॉर मैरिज. राहु इज गोइंग टू एक्सपैंड द पार्टनर फॉर यू. राहु, बट रिमेंबर यहां पर राहु सबसे बड़ा दुश्मन है लगन का सबसे बड़ा दुश्मन है. और एक कहावत है, कहते हैं कि आपकी जो शादी है वो आपके पिछले जन्म के सबसे बड़े दुश्मन से होती है. ठीक है. सो वो दुश्मन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो होप फॉर द बेस्ट हियर. केतु माइट मेक यू फील लाइक यू आर टेकिंग हेडलेस डिसीजंस, एंड दिस हेडलेस डिसीजन इज समथिंग विच यू विल रिमेंबर लेटर. अरे यार क्यों करा ली शादी सबसे बड़ा हेडलेस डिसीजन होता है. मैंने किसी को नहीं देखा वो कहे मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रह गया शादी को लेके. हर कोई 5 साल 10 साल बाद कहेगा यार अच्छा डिसीजन नहीं था. ठीक है. तो ये हेडलेस डिसीजन आपको यहाँ लेना पड़ेगा. एंड राहु विल बी लुकिंग एट द 3rd हाउस, इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन, मेकिंग यू गुड एट सोशल मीडिया, गेटिंग यू इनटू वेरी सोशल सर्कल्स, सोशल नेटवर्क्स, and it is overall good placement for Rahu. But because यहाँ पर Rahu will be in the Akarka sign
and being exalted, take care of your health. Take care of your health during this time, because केतु यहां पर आपकी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रहा है. लगन में केतु इज कटिंग ऑफ योर हेल्थ. So it's better to start worshipping Lord Ganesha. And from here it is looking at the 5th and the 9th house. Detachment from father, detachment from dharma, detachment from higher education, and detachment from children, or a creative hobby that you might be into. You want to make that hobby as a profession, but now you couldn't because Ketu will be manipulating it for you. Ketu will not let you enter into it. Okay? Cancer ascendants, raise your hand. So गगन जी, प्रजक्ता जी, कीरत जी, वो एक बोली है, कहते हैं अगले जन्म मोहे कर्क लगन न देओ. प्लीज डोंट गिव मी कैंसर असेंडेंट फॉर द नेक्स्ट लाइफ. बट रिमेंबर कहने वाला हूं कि कर्क लगन भगवान राम का था, और कर्क जो है वो सबसे ब्लेस्ड लगन होता है एक्चुअली. अब ऐसा क्यों होता है? 159 में सैटर्न के तीनों नक्षत्र आ जाते हैं. शनि के तीनों नक्षत्र त्रिकोण में आ जाते हैं. कहने को शनि बुरा होता है, लेकिन यहां पर शनि लेटर लाइफ में बहुत प्रॉफिट देकर जाता है. ठीक है? सूर्य के घर आप पैदा होते हो, राजा के बेटे, राजा की बेटियां कर्क लगन में पैदा होते हैं. राजा आपका पिता है. स्ट्रगल्स आपके लिए आपके भाई करने को रेडी हैं. वाइफ आपके लिए आपका घर बार छोड़ने को, सब कुछ करने को रेडी है. बच्चों के पैदा होते ही आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है. करियर आपका आपकी धर्म पत्नी के आने के बाद गेन होता है. ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड लगना, बट आई एम नॉट गोना गो इन डेप्थ फॉर नाउ. बट बड़ा कुछ है इस लगन में, और ये लगन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लगना है. और वो क्यों कहा गया है अगले जन्म मोहे करक लगन ना देओ? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मून. मून लिव्स इन फेजेस. चंद्र जीवन कभी घटता है, कभी बढ़ता है. हर अमावस को मरना पड़ता है, हर पूर्णिमा को जीना पड़ता है. तो सिर्फ ये इमोशनल टर्बुलेंस के लिए, ग्रहण में भी सर ग्रहण भी लगता है. ग्रहण भी लगता है. तो सिर्फ इमोशनल टर्बुलेंस के लिए कहा जाता है कि कर्क लगन नहीं, क्योंकि वी आर टू इनोसेंट फॉर द वर्ल्ड. कैंसर असेंडेंट्स आर टू इनोसेंट फॉर द वर्ल्ड. ओके? एक कहने पर, पिता के एक कहने पर भगवान राम अपना राज्य छोड़कर चले गए थे. ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं ठीक लग रहा, मैं चला जाता हूं. राइट? तो इतने इमोशनल होते हैं ये, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशंस दे सफर इन देयर लाइफ. Rahu is going to enter here. Ketu is going to enter here. What's going to happen? Rahu, foreign travels. Rahu, expansion of the 8th house. Now, expansion of the 8th house is good and bad. How can it be good? If you are into mantra, tantra, meditation, it's going to be good for you. And if you are into deception, robbery, earning the money which is not earned by you, then this is going to be negative. And from here, Rahu is going to look at the 4th house. You might again change your place, you might change your house. There might be expansion in your house, expansion in the properties, change of vehicle, change of property. Looking at 12th house, you might be going abroad. Now 12th is also the ceremonies. ये अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं. अच्छी सेरेमनी हो गई मैरिज, बुरी सेरेमनी हो गई लास्ट सेरेमनीज. राइट? एंड 8th हाउस इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग लास्ट सेरेमनीज. तो यहां पर ये थोड़ा सा नेगेटिवली एक्ट कर सकता है, खास तौर पे घर के बड़ों को लेकर के. एंड केतु इन द 2nd हाउस, ओके, देयर माइट बी सब्ट्रैक्शन इन द फैमिली. कोई ना कोई सब्ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है. ओवरऑल नॉट वेरी गुड, but it's good
to sell gold. It is good to donate money. It is good to do everything you can to activate this Ketu to do bad to your wealth. Okay, if this Ketu will do bad to your wealth, it will not take away the family member. क्योंकि रूल ये कहता है कि एक समय पर एक ही चीज एक्टिवेट होती है. ठीक है, या तो पैसा ले जाएगा या घर वालों को ले जाएगा. तो इट्स बेटर कि पैसा ले जाए. डोनेट मोर, गिव मोर मनी टू अदर्स. ठीक है. हाँ जी, जेमिनी असेंडेंट्स. Okay, a lot of Gemini ascendants. You know why there are a lot of Gemini ascendants? Because their karma is pending with the 8th house. They eventually enter into this thing. They eventually get into occult, astrology, astronomy, understanding life, understanding death, understanding why it is happening to me. They want to go in depth of this house. That is their karma. Capricorn represents your karma. That's what you want to do. Right? So here, Ketu is here and Rahu is here. Expansion in the 9th house, but also activating Pitra dosha. Do PhD. Okay, try to do PhD. कर सकते हो कर लो. हायर से हायर एजुकेशन ले सकते हो ले लो. क्योंकि एक तो त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में है, आपको पैसा भी देगा, आपको एजुकेशन भी देगा. एंड केतु हियर, इट माइट मेक यू ट्रबल विद इमोशंस. It might give you trouble in your relationship, in your close circles. You will see problems coming in relationship. You will see problems coming in the close circle because of the Ketu, detachment. But if your relation is built on the spiritual level, then this Ketu will increase it. Okay, because this is a natural sign of spirituality. 9th sign. It will increase it, but it has to be on the grounds of spirituality, not on other ABC grounds. Got it? Rahu will be looking at Lagna. Now Rahu is a scar giving planet. So 159, take care of head injuries. Okay, सिर पे चोट लगने का ऑप्शन है. कट लग सकता है, वो कुछ तलते हुए छींटा पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है. There could be a small kind of thing coming on your head. So be aware of it. Worship Lord Ganesha. Worship Lord Hanuman. Okay? And from here, you might see detachment from your children. Your children might be going abroad. Your children might be going there or here for higher studies. Or again, you might be sorry, it's not detachment, it's Rahu, right? So it's gonna be attraction. So your children might gonna come and visit you. Okay, you might start learning astrology, you might start learning Vedas, because this is a knowledge which is not present in books. So you will be going beyond books. That's why I suggest you to do PhD. Taurus ascendants, raise your hands. So we have a lot of lazy people. Taurus, relax, chill, why, क्यों करना है हमें ये सब? अभी अगर इतना पड़ा एक्सप्लोर करने वाला तो फिर एक्सप्लोर क्यों करना है? That is Taurus, okay? Am I audible? Am I audible? Yeah, great. So, Rahu 10th house, Ketu 4th house. मदर की हेल्थ का ध्यान रखो. हार्ट की सर्जरी हो सकती है. टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ योर मदर. बेसिक एजुकेशन में ब्रेक आ सकती है. ओके, टेक केयर ऑफ योर बेसिक एजुकेशन, टेक केयर ऑफ योर मदर. फ्रॉम हियर बाहर जाने में बाधा आ सकती है.
एट्थ हाउस भी एक्टिवेट कर रहा है केतु, एट्थ हाउस से भी डिटैचमेंट कर रहा है. डिटैचमेंट फ्रॉम एट्थ हाउस इज गुड हियर, बट डिटैचमेंट फ्रॉम ट्वेल्थ हाउस इज नॉट टू गुड हियर. ओके, सो यू माइट नॉट, कंजूस कर देगा ये आपको. क्यों कंजूस कर देगा? ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को केतु देख रहा है, आप कहोगे मुझे तो पैसा नहीं खर्चना, या आप पैसा खर्चोगे और लॉस हो जाएगा. You might buy something and then you face losses in that. All right. राहु सेकंड हाउस, वेल्थ, फैमिली, ये सब चीजों में एक्सपेंशन है. सिक्स्थ हाउस, एक्सपेंशन इन डेप्थ्स, रोग, ऋण और शत्रु. इजी रेमेडी, गेट अ क्रेडिट कार्ड. स्टार्ट यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड. टेक डेप्थ्स. Credit card is the easiest debt you can take. Right? So take that debt so that you don't face negative things later. So finally, after testing a lot of patience for Aries ascendants, raise your hands. Nobody is Aries ascendant. तो फिर मैं पेशेंस किसकी टेस्ट कर रहा था? किसी की भी नहीं कर रहा था. ओहो. No Kalpurush here. No Kalpurush here. Okay. Anybody with the Aries moon? Nobody's with the Aries moon. Oh, Prajakta But is my with the daughter Aries. has. So we have somebody with the Aries moon. Cool. कुछ तो है ना एरीज में, तो पेशेंस किसी की तो टेस्ट हुई ना. So it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So this is Rahu, this is Ketu. Very 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 strong Rahu here. Okay, बाधक की राशि में है, तो ये एरीज में तो बहुत बाधा डालने वाला है. चाहे ये मैरिज करा देगा, लेकिन मैरिज में भी बहुत बाधा लाने के बाद कराएगा. एफर्ट्स भी दे देगा, कम्युनिकेशन भी दे देगा, सोशल मीडिया पे ग्रेस भी दे देगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद. अर्ली और इजी नहीं देगा, क्योंकि ये बाधक के हाउस में है. दिस इज इन द 11th साइन. Everybody knows that 11th is a Badhaka for Aries. Everybody knows it. जिसको नहीं पता हैंड रेज करो. रिया जी को नहीं पता, प्रजक्ता जी को नहीं पता, काजोल जी को नहीं पता, सेरल जी को नहीं पता, रूबी जी को नहीं पता. So what happens is, for these lagnas, 11th house lord is the Badhaka. Now Badhaka, बाधक का मतलब क्या होता है? What is बाधक? बाधक means बाधा डालने वाला, obstacle causing planet. So here this Rahu will be causing obstacles. It will be bringing opposition for you. You might feel like you are opposed. Wherever you go, you are opposed. Okay? So ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, लेकिन यहाँ पर मैरिज को एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रेवल्स को एक्टिवेट कर रहा है. एंड केतु इन द लियो, take care of your father, because from here it's going to look at the 9th house and it's in the natural Leo. Take care of your own health as well. And this Ketu, worship Lord Ganesha to get best out of it. ठीक है? बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं. अब ये प्रेडिक्शन इसके लिए बनेगी. आपका एंटरटेनमेंट सोर्स, आपका जो आप करना चाहते हो, वो आपसे दूर जा सकता है. एंड फॉर दिस केतु, because it is going to be looking at the lagna, you might again make the headless decisions. अब see, headless decision, marriage. ठीक है ना, ये headless decision हो गया, ये marriage होगी. But remember, यहाँ पे क्या होगा? अब जहां एक और हमने अभी केस देखा था, जब यहां पर राहु था और यहां पर केतु था, तो क्या हो रहा था? राहु लवर तो दे रहा था, लेकिन मैरिज नहीं दे रहा था. अब यहां क्या होगा? लवर नहीं होगा, लवर चला जाएगा और मैरिज हो जाएगी. तो हो सकता है जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उससे आपकी डिटैचमेंट हो जाए, वो बाय बाय हो जाए, और फिर घर वाले अरेंज मैरिज करा दें कि लो जी अब ये शादी तो हो गई है. ठीक है? तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट. दिस इज जस्ट वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. देर आर मैनी वेज. डिस्क्लेमर ये है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस. बहुत ही कुछ है इसमें. इसमें अभी हमने नवतारा नहीं लिया है, हमने हाउसेस नहीं लिए, हमने प्लैनेट्स नहीं लिए,
हमने सिग्निफिकेटर नहीं लिए, हमने अलग अलग त्रिकोणास नहीं लिए, हमने बहुत बेसिक रीडिंग की। लेकिन ये बहुत बेसिक रीडिंग से भी आप बहुत चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाए। नाउ ऑल ऑफ योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। प्लीज रेज योर हैंड्स वन बाय वन। जिनके अभी ऊपर हैं एक बार प्लीज सारे नीचे कर लो। एक बार एवरीबडी हैंड्स डाउन। या सो विल स्टार्ट विद इंदु रेखा जी। हाँ जी इंदु। नमस्ते। नमस्ते जी, हुकुम। जी मेरा 12th असेंडेंट है, मीन असेंडेंट। और जब आपने पहले बोला ना कि डोंट इंटरफेयर राहु इन 12th हाउस, तो वो मुझे नहीं समझ में आया कि मतलब वो कैसे नहीं इंटरफेयर करना है। और देखो, ये जो राहु चेंज करता है उसे करने देना है। वो आपको घर चेंज करा रहा है, कर लो चेंज। वो गाड़ी चेंज करा रहा है, कर लो चेंज। वो करियर चेंज करा रहा है, कर लो चेंज। वो घर वालों को बच्चों के लिए कुछ बेटर सोच रहा है, कर ले दो। डोंट इंटरफेयर। आप ये मत रिस्ट्रिक्ट मत करो कि नहीं ये नहीं होने दूंगी, ये नहीं करना है। अच्छा, तो लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन भी क्रिएट नहीं हुआ अभी तक। वो अभी होगा ना। यू आर पाइसेस असेंडेंट राइट। यस, तो अभी ये जो राहु होने वाला है। यहाँ आएगा अभी। ओके ओके। तो यही बस एक मेरे को पूछना था। और एक था कि स्किन डिजीज, तो ये क्या स्किन डिजीज मतलब नहीं समझ में आया है, क्योंकि केतु के लिए आपने कहा कि ये स्किन डिजीज, ये किस बेसिस पे कहा सर, बस मुझे उस जानना है। जो केतु है, केतु रूल्स द स्किन डिजीजेस। ओके। आई ऑलरेडी हैव सम इचीनेस इन द फेस, तो ये इस वजह से है क्या? हाँ, इंक्रीज होगी वो। ओ, तो ठीक उसके है। लिए कुछ रेमेडी है सर कि नहीं, ऐसे जनरल? वर्शिप लॉर्ड गणेशा, दैट्स ऑल। थैंक हाँ यू। जी सुमरत जी। वेट, लेट्स टेक शिवानी जी फर्स्ट। हाँ जी शिवानी जी। सर जैसे मेरे हस्बैंड की कुंडली में बाय डिफॉल्ट ये है क्या है? और क्या है? बाय डिफॉल्ट यही राहु केतु की प्लेसमेंट है। हाँ, तो दैट्स राहु रिटर्न। सर इसका कोई असर होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। कौन सा चक्र है, कितनी उम्र हो गई है? इज इट 18th ईयर, इज इट 36th ईयर, इज इट 48th ईयर? वी हैव टू सी दैट। तो सर सिर्फ 54 है। हाँ, तो 54th ईयर है ना। दैट मीन्स इट्स द थर्ड साइकिल ऑफ राहु। हाँ जी। अब थर्ड साइकिल ऑफ राहु में हम प्रोग्रेशन देखेंगे। राहु 3 हाउसेस प्रोग्रेस किया है, तो वो उसके लिए यू शुड बी गोइंग फॉर पर्सनलाइज चार्ट रीडिंग। मैं ऐसे आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत डेप्थ वाली चीज़ है। जी ठीक। ठीक है। जी। हाँ जी सुमरत जी, गो अहेड। सर एक मतलब पूछना था कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि राहु हर प्लेनेट के साथ नेगेटिव रिजल्ट देता है, लेकिन कोई ऐसा प्लेनेट है क्या जिसके साथ वो पॉजिटिव देगा? जैसे केतु जुपिटर के साथ अच्छा देता है ना, आपको तो राहु किसने कौन से कहा प्लेनेट है के कि साथ? राहु नेगेटिव रिजल्ट देता है? राहु से पॉजिटिव कोई प्लैनेट नहीं है। सर लेकिन ऐसा नेगेटिव ही पोर्ट्रे किया गया है ना राहु को। किया हर गया है इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज नॉट। राहु ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। जब समुंदर मंथन होना था तो राहु की सपोर्ट से हुआ। राहु को कहा गया जो होगा आधा आधा, आधा तुम्हारा आधा मेरा। उसमें से बहुत कुछ निकला। हाथी को कोई ले गया, माँ को कोई ले गया, हीरे जवाहरात कोई ले गया, अमृत कोई ले गया। और राहु को क्या दिया कि तू ये रख ले, मदिरा रख ले। तो डिसेप्शन तो राहु के साथ हुई ना, गलत तो राहु के साथ हुआ। और जब वो और उसको गया भेस बदल के कि मैं अपने हक की चीज तो लूंगा ना, मेरा 50% पार्ट है उसमें, तो वो 50% लेने गया तो उसको चक्र से आधा आधा काट दिया गया। तो ये राहु काट दिया। बड़ी लंबी स्टोरी है। राहु इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट। जब हम राहु को पढ़ेंगे कभी किसी दिन, वी विल बी लर्निंग अबाउट द मिस्टीरियस राहु। राहु इज नॉट एट ऑल अ बैड प्लैनेट। In fact, in Kali Yuga, if you want to rise, you need to take help of Rahu. Without Rahu, nothing is going to happen. And the planets जिनके साथ ये good result देता है, one of them is Venus and second of them is Mercury. ओके। Okay? और सर एक और चीज थी कि सर राहुल ने तो सर अमृत पी लिया था ना, जिसके कारण विष्णु भगवान को चक्रा से काटना पड़ा उनका धड़ और सर। सर उस अमृत में उसका 50% शेयर था ना। मतलब और असुरों के पास आया था ना अमृत तो, अमृत कहाँ असुरों के पास आया था? जिसको चोरी करके ये चुनमुन थे, पता नहीं कौन थे, वो लेके भाग गए थे। हाँ हाँ, ये लंबी स्टोरी है।
ये हम जब इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे ना मिस्ट्रियस राहु को, उस दिन हम ये स्टोरी को ज़रूर डिस्क्लोज करेंगे और हम इससे कई चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी। और सर एक और था कि आपने मतलब एक्वेरियस असेंडेंट के लिए बोला कि वो सुपर मैनिपुलेटिव बनेंगे, तो लेकिन अभी वो एक्वेरियस में आया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हो रहा हूँ ऐसा। हाँ, मतलब क्योंकि अभी 4 18 डिग्रीज में को हो गया, ट्रांजिट होगा, लेकिन 4 डिग्रीज हो अभी गया से ना। रिजल्ट आ रहे हैं। आपका जो लगन है उसका डिग्री मैटर करेगा ना, कि कितने डिग्री का लगन है, उस अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जल्दी और कुछ चीज़ें बाद में घटित होती। ठीक है ना, दैट इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड थिंग। हाँ जी रिया जी। सर मेरा लिब्रा असेंडेंट है। मेरे को ये जानना था कि अगर जैसे 5th हाउस में अभी मेरे राहु होगा, आ जाएगा, तो वो एस्पेक्ट करेगा 9th हाउस को। 5th हाउस में होने से वो एक तो वो नॉलेज दिखाता है जो बुक्स में नहीं है, और 9th से वो हायर एजुकेशन को दिखाता है, तो वहां पे वो भी हो सकता है कि यस, एक हायर नॉलेज की तरफ जाए या कुछ। और जैसे पर्सनैलिटी पे भी वो एस्पेक्ट डालेगा, तो क्या पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सकती है आगे जाके, या राहु बहरूपिया है, तो आपको बहरूपिया बनना पड़ेगा। यू माइट हैव टू चेंज योर लुक्स। ओके। Okay, if you will change your looks, you will see Rahu giving you positive results. Now, these are सर small, मेरी small, small राहु secrets, small, small, small remedies that can be done. So, yeah, you can also go for PhD, you can go for higher studies, you can go या for astrology सर as well. मेरी राहु की महादशा भी चल रही है इस टाइम पे, तो इट्स लाइक अ मिक्स मैच। अच्छी बात है, राहु की दशा अच्छी होती है लिब्रा असेंडेंट के लिए। होप सो। डोंट वरी, यू विल डू ग्रेट। थैंक यू ठीक है, हाँ जी किरत जी, देन विल टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अनीता जी। जी अनमोल सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मेरे एक्चुअली चार्ट में भी राहु चंद्रमा का सर 5th हाउस में है, तो ये पितर बनता है, तो इसमें क्या क्या रेमेडीज थोड़ी बहुत कर सकते हैं? देखो यहाँ पे द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज इम्प्रूव योर मून फर्स्ट। तो यहाँ पर चंद्र को इम्प्रूव कीजिए। चंद्र को इम्प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है फुल मून नाइट पे चंद्रमा के नीचे वक्त गुजारिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, और एक 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। सर आई एम ऑलरेडी वेयरिंग 8 मुखी रुद्राक्ष, मेरे को पता नहीं कैसे पता चला था। सी राहु's महादशा, इंट्यूशन, इट्स ऑटोमेटिकली गोना डू गुड फॉर यू। या तो यहाँ से पता लग गया राहु आपके लिए वैसे ही पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ जी अनीता जी, लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी आर डन। हाँ जी, मैं वही बोल रही थी, मेरी भी राहु की महादशा है, and this has been the best so far of any mahadasha. I think this has taken me to spirituality, to occult, to all of these other things, you know. तो मैं तो कभी भी I never say that Rahu in a negative manner. Of course, दिमाग हमेशा चलता रहता है, which it will always do, obviously. But other than that, it has been very, very good. So I would always say कि कोई भी planet good या bad नहीं होता, and कोई भी महादशा, you know, good and bad नहीं होता. It depends, of course, on your chart. But I've seen a very, very good results for myself. So very nice, sir. यही होता ना. This is the world is working on the dual energy factor. With the Shiva, there is Shakti. yeah, With the day, there is night. So no planet is completely bad and no planet is completely good. Okay, there is light and shadow, and this game of light and shadow is what we decode कि इस टाइम पर ये लाइट है कि शेडो है। वही प्लैनेट कभी कभी लाइट होता है और वही प्लैनेट कभी कभी शेडो होता है, तो वो हमें देखना पड़ता है। सर एक लास्ट चीज सर, कि आप प्लीज राहु केतु के भी वीडियो डालिए ना, मतलब नेगेटिव कैसे करते हैं लोग। या वी विल आई एम स्टार्टिंग वेबिनार सीरीज, तो हम वेबिनार्स ही और करेंगे। अभी के लिए मेरे को इजाजत दो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग एंड द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी प्रदीप जी, आप बताइए। सर आप जब बता रहे थे कि राहु जैसे लियो वालों का शादी का योग बनता है, बट जिनकी शादी ही होगी वो पछता रहे हैं, इसलिए तो जरूरी थोड़ी है जिसकी शादी हो गई है तो हो गई है, बाकी चीजें 7th हाउस में एक्टिवेट होंगी, बिजनेस होगा, पार्टनरशिप होगी, यू माइट मीट समबडी जिससे शादी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। राइट, 7th हाउस से एक चीज थोड़ी देखते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स वी कैन सी फ्रॉम वन पर्टिकुलर हाउस। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल बी डूइंग दिस अगेन
जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव।